good evening to everyone and a very warm welcome to Mo TV. And today again we have a very special session. Whenever there's a community session, it becomes extremely special because all of you are participating, and I know the effort that goes into it. So today's topic also is a beautiful topic which Abhaji has taken up along with her team. So to begin the session, as you all know, today we are going to be talking about forgiveness is divine. And just a few things that I would like to say about this particular topic is, there's a very popular saying by Alexander Pope: to err is human, to forgive is divine. All people commit sins and make mistakes, and God forgives them. And people are acting in a God-like way when they also learn to forgive. Nobody's perfect. We all err, and we all need forgiveness. I have also made some big mistakes in life. I have always wished that I could turn back the hands of time and fix things more often than I would like to really admit here. But unfortunately, we have to live with our mistakes. Sometimes we can only hope and pray for forgiveness from others. We aren't getting through life without needing forgiveness from someone. And none of us are getting through life without experiencing the need to forgive someone else for the pain caused us. Sometimes what's more, we need to forgive even when the offender doesn't make an effort to make things right. And that can really be tough, especially if the pain and the hurt is really deep. But it is definitely very possible to. Most of all, we also need forgiveness from God. And I hope that you all have a wonderful session today with Abha Sutanaji and her whole team. And as you all know, today it's being conducted by the Spiritual and Motivational Community. So Abhaji, I'm going to hand over to you now, and really looking forward to this session and this particular topic. Thank you, Ritu. And thanks for a very beautiful introduction of the topic. And well, it really gives a very brief description and in-depth description of the topic. I welcome everyone and my team who are participating and giving their views. Our topic for today, as Ritu has already described, is forgiveness is divine. And forgiveness, we all look forward, whether it's from the self, from anybody else, from God, whatever it is. And it relates to all of us. In our journey of life, we all do mistakes, knowingly, unknowingly, and we look forward for forgiveness from someone else, God, or even from the self. Sometimes we do mistakes and realize, and we look forward for changing ourselves, which is actually a forgiveness from the self. क्षमा हमारी जिंदगी का हिस्सा है. बहुत बार हम कहते हैं क्षमा करा अगर किसी ने गलती करी, पर ये भी कहते हैं कि हम भूल नहीं पाते. तो क्या वो क्षमा है? उसको अगर हम नहीं भूल पाए तो वो क्षमा नहीं, वो हमें भी जलाती है, दूसरे को भी माफ नहीं करती है. Forgiveness is just to forget, let go and move on. That is the forgiveness. If you make strong, it makes you strong, powerful, yet kind. Forgiving you is a gift my gift to you, but when I move on, it is a gift to myself. So I move on, I forget everything, and I am at peace. So that is a great gift which we give to ourselves when we move on. We cannot change the past by forgiving or anything, but definitely all of us change our future by moving on. Because क्षमा हम कहते हैं उन फूलों जैसी है
जो मुसलने पर भी खुशबू देते हैं। तो क्षमा की खुशबू हर समय हमारे साथ रहती है, हर समय दूसरे को भी लगती है और हम बहुत पीसफुल हो जाते हैं। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो हम अपने को देते हैं। दूसरों को तो देते हैं, बट उससे ज़्यादा हम अपने को भी देते हैं। So today we have a series of speakers who will share their views and experience of life. Our first speaker is Giri Shankar Rajji Kejriwal ji. I think he had tried and he is very well on the screen. A mature, well-experienced person. Kejriwal ji, I will give this to you to speak. धन्यवाद। हाँ जी, आ रही है ना आपको? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप बोलिए। क्षमा, क्षमा बलम सक्ता नाम भूषणम क्षमा, क्षमा वशीकृते लोके, क्षमया किम न सिद्ध्यति। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। क्षमा कमजोर की ताकत है, क्षमा बलवान का श्रृंगार है। दुनिया क्षमा से वशीभूत है, क्षमा से क्या पूरा नहीं हो सकता। क्षमा सब क्षम धातु से उत्पन्न होता है और क्षम का अर्थ होता है सहना। जो सह सकता है वही योग्य माना गया है। क्षमा धरती का भी एक नाम है, वीर भोग्या वसुंधरा। जिसमें क्षमा नहीं, वो अक्षम व्यक्ति है, वो न वीर है, न सहनशील है, न ही किसी सुख का अधिकारी। दंडित करने का सामर्थ्य होते हुए भी अभय कर देना क्षमा है। क्षमा करना सरल नहीं है, एक आत्म संयमी ही क्षमा कर सकता है। काम, क्रोध आदि सट रिपुओं से ग्रसित के लिए क्षमा दान कठिन है। अतएव शास्त्रों में वर्णित है क्षमा वीरस्य भूषण। केवल बल या शक्ति से पुण्य ही वीर नहीं है। जिसमें क्षमा, दया, करुणा आदि गुण हो वही वास्तविक वीर है। क्षमा किया जा सकता है, लेकिन क्षमा कर इस कृत्य को भूल जाना ज्यादा आवश्यक है। क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन क्षमा कर याद कर अन्य के सम्मुख उल्लेख भी कर देते हैं कि मैंने उसको किया था। ऐसा करने से क्षमा की गरिमा कम हो जाती है। धन दान एवं क्षमा दान, इन दोनों को देकर भूल जाना ही श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्रों ने क्षमा को महिमा मंडित किया है। एक प्रसंग का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। कौरव पांडव के युद्ध विनाश के पश्चात अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी इस दुख को सह न सकी। द्रौपदी के निराधार अश्रुओं से विचलित अर्जुन अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सम्मुख लेकर आए और कहा, द्रौपदी, इसे सजा दो। जिसके निद्राधीन पुत्रों की हत्या कर दी गई हो और हत्यारा सम्मुख हो तो तत्काल मृत्यु दंड ही दंड उचित प्रतीत होता है। लेकिन जब द्रौपदी ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखा तो बोल पड़ी। क्या बोली? मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, अर्थात छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने पर मैं दुखी होकर रो रही हूँ, वैसे ही इनकी पतिव्रता माता गौतमी न रोए, और क्षमा कर दिया। क्षमा का इससे श्रेष्ठ उदाहरण और क्या हो सकता है। लेकिन आज का परिवेश बदल रहा है। आज का नारा है मौत का बदला मौत। विश्व बदले की दुष्ट अग्नि में जल रहा है। शिक्षक विद्यार्थियों को दंडित कर रहे हैं, सेठ अपने नौकर को दंडित कर रहे हैं, मैनेजर कर्मचारी को दंडित कर रहा है, जैसे क्षमा शब्द विलीन हो गया हो। आज के कुछ दिनों पूर्व की घटना आपने सुनी होगी, अखबार में भी आई थी। विद्यालय में मैच हारने पर एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को पत्थर फेंक कर मारा। ये कैसी सोच है? संस्कार का अभाव या वातावरण का प्रभाव? क्यों करे माफ? गलती करती है तो सजा मिलनी चाहिए। ऐसी विचारधारा ने अपना प्रभुत्व जमा लिया है। हर व्यक्ति के अंदर राम के साथ साथ रावण भी बसता है। कभी राम भाव तो कभी रावण भाव तीव्र उठता है। अंग्रेजी में कहावत है, टू आर इज ह्यूमन। गलती मानव स्वभाव है, लेकिन प्रश्न है कैसी गलती?
साधारण गलतियां छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन अकल्पनीय गलतियां उन्हें भी छोड़ दें तो अव्यवस्था सृजित होगी। आज का हमारा विषय है क्षमा, और उसके साथ डिवाइन शब्द जोड़ दिया गया है। क्षमा निसंदेह उच्च भाव का प्रतीक है, लेकिन माफ करने के पूर्व यह देखना कि गलती क्या है, क्या सचमुच इस गलती को नजरअंदाज कर माफ करना उचित होगा। कुछ पापजन्य जघन अपराध अनाचार माफी के योग्य नहीं है। इन्हें न्यायिक प्रणाली पर छोड़कर जीव मात्र को सहजता से माफ करने के भाव को अपनाना चाहिए। हमारे देश के कुछ समुदायों ने क्षमा को इतना महत्व दिया है कि वर्ष में एक बार क्षमा त्योहार मनाते हैं एवं मिच्छामि दुक्कडम के नारे के साथ वर्ष भर यदि किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा न करना अव्यवस्थित चित्त, अयोग्यता व इंद्रिय निग्रह रहित व्यक्ति के लक्षण है। यह अधम प्रकृति के मानवीय लक्षण है। इसके ठीक विपरीत अर्थात क्षमा करने वाला व्यवस्थित चित्त, योग्य और इंद्रियों को जीतने वाला होता है। ऐसा पत्र मानव होते हुए भी दिव्य है। जय श्री कृष्ण। हाँ, जाते जाते एक बात और याद आई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे यहाँ क्लास में दोहावली करके एक था किताबों में, तो अब्दुल रहीम खान खाना की दोहावली मुझे एक दोहा याद आ गया। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को अपराध, का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लाल। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही व्यवस्थित रूप से विचार, बहुत अच्छे। लॉट ऑफ डेप्थ। आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ जी सागरिका जी। हाँ, बहुत इम्प्रेसिव है, मतलब जो बताए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से बताए, बहुत अच्छे से बताए हैं, बहुत अच्छा है। और वो बिल्कुल ठीक है कि हम किसी के दिल को ठेस जब पहुंचाते हैं तो माफ़ी मांगना आसान सा लगता है, लेकिन खुद जब ठेस लगती है या कोई हमें हर्ट करता है तो हमें चोट खाकर माफ़ी देना उतना आसान नहीं लगता। जो उन्होंने कहा कि कुछ अपराध अक्षम्य भी होते हैं, लेकिन वो हमें उसकी डिवाइन जो हमारी व्यवस्था है उस पर छोड़ने होते हैं। तो वो बहुत अच्छा है। और क्षमा हमें बहुत जल्दी, जैसे हम भगवान से क्षमा चाहते हैं, इस तरह से सोच के हमें भी क्षमा करने का सीखना चाहिए। थैंक यू केजरीवाल जी, बहुत अच्छे, वेरी वेल एक्सप्रेस व्यूज, सब बहुत अच्छे वो हैं। थैंक यू केजरीवाल। या our next speaker is Mridulata. Mridulata ji, very passionate person with loving heart and soft corner for all. Mridulata इसमें छोटा सा वो कहूँगी। हाँ जी, नमस्कार जी। Anger makes you smaller, forgiving makes you grow beyond what you are. It heals you, gives you acceptability for all. It is best form of love for any relationship. तो मृदुला जी, अब आपके विचार बिल्कुल रखिए और हम आपके विचार सुनने को बहुत उत्सुक हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। आई लव ऑल ऑफ यू, और आप लोगों के साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरुआत करूंगी बचपन से जो मुझे रटाया गया है एक मंत्र, उस मंत्र के साथ। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजन चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मतलब हर रोज सवेरे और हर रोज शाम हमें ईश्वर से क्षमा मांगनी है, इसलिए कि हमें जो सही तरीके हैं वो नहीं आते हैं। ये बचपन में सिखा दिया गया, हमने इसका अर्थ नहीं पूछा, कुछ नहीं, मगर आदत जो पड़ गई है, सवेरे शाम हम ये भजन, ये मंत्र जरूर बोल देते हैं। आज का हमारा विषय है फॉरगिवनेस इज डिवाइन। अगर ये डिबेटेबल मुद्दा होता तो मैं इसके अगेंस्ट बोलने वाली थी, मगर चूंकि ये डिबेटेबल नहीं है तो मैं शुरुआत करती हूँ हाउ द वर्ड forgiveness has defined. Forgiveness is often defined as an individual, voluntary, internal process of letting go of feelings and thoughts of resentment,
bitterness, anger, and the need for vengeance and retribution also towards someone who we believe has wronged us, including ourselves. हम भी कई बार अपने आप के ऊपर अत्याचार अनजाने जाने में कर देते हैं. Forgiveness and revenge and the tendency to punish are fixed aspects of human nature. ये अलग एस्पेक्ट है. अगर इस वर्ड के हम पोस्टमार्टम करें, इसके तार निकाल के देखें, तो कई शेड्स हमारे सामने आते हैं. उसमें आता है पनिशमेंट, उसमें आता है जो परिवर्तन करना है किसी बंदे के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि फॉरगिवनेस के शेड्स हमें नजर आते हैं. अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो फॉरगिवनेस का अर्थ होगा क्षमादान. हम अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं और अन्य की गलती के लिए उसे क्षमादान करते हैं. और भी सरल करके कहें तो यदि हमें किसी ने शब्दों के माध्यम से, शारीरिक प्रहार करके, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से चोट पहुंचाई है, हमें किसी भी रूप में हर्ट किया है, तो हम उस व्यक्ति को से नाराज हो जाते हैं. चोट के बदले में हम भी उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं, हम उसे दंड देना चाहते हैं. लेकिन क्या हम स्वयं ऐसी भावना मन में रखकर सुखी रह पाते हैं? नहीं, किसी भी रूप में नहीं. बदले की भावना या दंड देने की इच्छा की आग में हम स्वयं जलते रहते हैं. ऐसे में अपने मन का बोझ उतारने का सबसे अच्छा उपाय है क्षमा कर दो. उसने हमें बहुत दुख पहुंचाया, ये उसका चरित्र है, हमने उसे क्षमादान दिया, यह हमारा चारित्रिक गुण है. कभी हम स्वयं भी किसी को जाने अनजाने हर्ट कर देते हैं, फिर हम गिल्टी फील करते हैं. यहाँ हम यदि अपने आप को क्षमा कर दें तो हम हल्के मन से जी सकते हैं. क्षमादान also is an escape from reality. It can be also called as personality trait. कई इसके कई शेड्स हैं. क्षमादान के कई प्रकार हैं. इस माध्यम से हम मनुष्य को भी सीख दे सकते हैं, मनुष्य को सीख भी दे सकते हैं. क्षमादान जो रूप मैं समझती हूँ कि उसे अपराधी को इग्नोर करें, उस जो जिसने हमारे अगेंस्ट अपराध किया, हमें हर्ट किया है, उसे हम इग्नोर करें और प्रकृति स्वयं उसे दंड देगी. इसका अपना गिल्ट उसे खत्म कर देगा और प्रकृति किसी न किसी रूप में उससे प्रायश्चित अवश्य करवाएगी. और वह प्रायश्चित उसका दंड होगा. हो सकता है ये दंड कंस्ट्रक्टिव हो सकता है ये दंड रिफॉर्मेटरी हो. एक्चुअली ये क्षमादान होगा प्रकृति की ओर से. आज मैं आपको इसी सिलसिले में एक कहानी सुनाती हूँ. वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि एक बार भगवान श्री राम के दरबार में न्याय पाने के लिए एक कुत्ता पहुंच गया. जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, तो कुत्ते ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए. राम जी उपस्थित हुए. कुत्ते से पूछा, कहो क्या शिकायत है. कुत्ते ने कहा कि प्रभु, मैं खेत के मेड़ के पास लेटा हुआ था, तभी एक ब्राह्मण उसी ओर आया. उसने अनावश्यक ही बिना किसी अपराध के डंडे से मुझ पर जोर से प्रहार किया. प्रभु, मुझे न्याय चाहिए कि बिना किसी अपराध के भी ब्राह्मण ने क्यों मुझे पीटा, इसीलिए आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए. इस पर श्री राम ने उस ब्राह्मण को भी बुलवा लिया और उससे सवाल किया कि आपने इस कुत्ते को किस कारणवश पीटा. ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, मैं स्नान करने हेतु नदी की ओर जा रहा था. इस कुत्ते को राह में देखा तो सोचा कि कुत्ता कहीं मेरे कपड़े छूकर मुझे अपवित्र ना कर दे. इसी भय से मैंने इसे दूर भगाने के लिए डंडे से प्रहार किया. अब भगवान ने कुत्ते से पूछा कि तुम ही बताओ इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए. तब कुत्ते ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना है. भगवान ने पुनः कहा कि नहीं, दंड क्या देना है यह तुम्हें ही बताना होगा. जो तुम निश्चित करोगे वही दंड इन्हें दिया जाएगा.
तब उस कुत्ते ने जो कहा वो सुनकर सारी सभा अवाक रह गई। मैं भी आश्चर्यचकित हो गई कि भाई इस कुत्ते का उद्देश्य क्या है, मगर ये एक रिफॉर्मेटरी दंड था। ये छुपे हुए रूप में एक क्षमादान था। कुत्ते ने कहा कि प्रभु, इन ब्राह्मण को कालिंजर के एक मठ में मठाधीश बना दिया जाए। वहां उपस्थित सभी प्रजाजन आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि कालिंजर का वो मठ असीम वैभव, ऐश्वर्य एवं अकूत धन से समृद्ध था। उसका मठाधीश बनना तो बड़े गर्व की बात थी। इस पर राम जी ने पूछा कि तुम इन ब्राह्मण को दंड दे रहे हो या पुरस्कार? यह कैसा मजाक है? कुत्ते ने कहा, प्रभु मैं इन्हें दंड ही दे रहा हूँ। पिछले जन्म में मैं वहां का मठाधीश था। उस पद से प्राप्त ऐश्वर्य, समृद्धि एक अपार, और उस अपार धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। माया मोह के संसार में मैं ऐसा खो गया कि सही और गलत की पहचान भूल गया। सत्य के प्रति कार्य करने के अपने कर्तव्य को भूलकर मैं कुकर्मों में लिप्त रहने लगा, और जीवन का असली आनंद, असली उपलब्धि मैं उसी को समझ बैठा। इससे मेरे तप का तेज खत्म होने लगा। मैं सभी को कष्ट देने लगा, और पाप कर्म में लिप्त रहना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया। इसी तरह मैं एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया, और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए मुझे पुनः कुत्ते की प्राप्ति हुई है। मेरा जिस ओर इशारा है वो आप इस वाक्य से समझिए। अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए मुझे पुनः कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। इसीलिए प्रभु मैं जानता हूँ कि कालिंजर के मठाधीश होते ही यह ब्राह्मण ऐश्वर्य भोग में लिप्त हो जाएगा। निश्चित रूप से इनके तप का तेज समाप्त हो जाएगा, और इन्हें भी कुत्ते की योनि में जन्म लेकर इसी तरह तिरस्कृत होना पड़ेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण के अंदर जो आत्मिक परिवर्तन हुआ होगा, मैं कल्पना करके बता रही हूँ कि जो परिवर्तन हुआ होगा वो दंड के रूप में एक पुरस्कार था। वो एक्चुअली कुत्ते की तरफ से उस ब्राह्मण को क्षमादान था, जो उसके मन में ये दंड सुनते ही परिवर्तन आया होगा थोड़ा बहुत। कर्म सिद्धांत का यह नियम है कि प्राणी जो भी कर्म करता है उसके फल को भोगने के लिए उसे पुनः जन्म लेकर अपना कर्म शेष करना पड़ता है। प्रकृति में कुछ भी क्षम्य नहीं है, और प्रकृति में कुछ भी अक्षम्य भी नहीं है। प्रकृति का प्रभाव हमें हरसू नजर आता है। वहीं से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी को कुछ ना दो, किसी को कष्ट ना दो, माफ कीजिए, किसी को कष्ट ना दो। कुकर्म छोड़कर अच्छे कर्मों में लिप्त रहो। हमारे कर्म ही बड़ी पैनी नजर से हमको देख रहे होते हैं। कभी भी इस पृथ्वी पर हमें स्वयं कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति स्वयं ही जब अपने नेचुरल कोर्स में हमें दंड या दूसरे शब्दों में क्षमादान देकर हमें सुकर्म करने के लिए प्रेरित करती है, तो हमें क्षमादान करने का स्कोप कहाँ रह जाता है? जब ये प्रकृति अपने नेचुरल कोर्स में क्षमादान करती है दंड के रूप में या रिफॉर्मेटरी रूप में या कंस्ट्रक्टिव रूप में, तो हमें कहाँ स्कोप रह जाता है? हम तो मनुष्य, हम साधारण मनुष्य हैं, हम गौतम बुद्ध के समान मनुष्य नहीं है जो क्षमादान करते चलते हैं। उतनी शक्ति हम में नहीं है, उतना तेज भी हम में नहीं है। ये सत्य हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो मुझे जीवन की इस मोड़ पर मुझे यही समझ में आता है कि कष्ट पहुंचाने वाले को आप इग्नोर करिए, जस्ट इग्नोर। मैं ग्रेजुअली उसके जीवन से अपने आप को अलग कर लेती हूँ, किनारा कर लेती हूँ, और अपने जीवन जीने का सिलसिला अपने तरीके से बरकरार रखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रकृति है ना अपनी तरह से हमें हर्ट करने वालों को दंड या क्षमादान देने के लिए।
सुधारात्मक प्रयास और स्वयं के अनुभवों से उसे सुकर्म करने को प्रेरित करती है। फिर क्षमादान करने का अधिकार मुझे कहाँ? ये मेरी अपनी सोच है, आप लोग इससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर उस ब्राह्मण को के अंदर एक रिफॉर्मेटरी चेंज लाना चाहता था, यह उसका प्रयास था। दंड के रूप में प्राकृतिक रूप से समाज को सुखी एवं आदर्श समाज वो कितना बनाना चाहता था। मैं जन्म जन्मांतर की फिलॉसफी में विश्वास रखती हूँ। मेरा यह मानना है कि यदि इस जन्म में हमने एक पल के लिए भी किसी का मन दुखाया है तो हमें निश्चित रूप से इसी जन्म में उतना ही दर्द भोगना होगा। यह पूर्व निश्चित है। हमने किसी को चोट पहुंचाई तो हमें भी वैसी ही चोट मिलेगी, और यदि इस जन्म में ना मिली तो हमें एक और जन्म लेना होगा। उपकार और आघात के रूप में हमें स्वयं भी कर्जदार होते चलते हैं हम, और जीवन की राह में और अन्य को भी कर्जदार बनाते चलते हैं, और इसी अच्छे बुरे कर्मों के कर्ज को उतारने का सिलसिला जन्म जन्मांतर चलता रहता है। ये मेरा अपना अनुभव है। ये मैंने जो कुछ भी फॉरगिवनेस शब्द के शेड समझे हैं वो अब मैं एक अपनी लिखी हुई छोटी सी 4 लाइंस पढ़ के खत्म करती हूँ। जन्म जन्मांतर का पाप प्रायश्चित करेगा क्या एक ही जन्म में? ये प्रायश्चित के रूप में हमें या तो दंड कर मिलता है या क्षमादान मिलता है, या हम स्वयं क्षमा करते हैं अपने आप को कि हमने वो उस जीवन में कहीं कोई पाप किया होगा या किसी का मन दुखाया होगा। जन्म जन्मांतर का पाप प्रायश्चित करेगा क्या एक जन्म में? प्रायश्चित तो खैर पूजा है ईश्वर की, फिर भी कितनी पूजाओं का प्यासा है वह तथा कथित ईश्वर। नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लता जी, बहुत अच्छे, वेरी बहुत नाइस, अच्छे, वेरी बहुत अच्छी तरह बोला कि दंड और प्रायश्चित। बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया आपने। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा। दंड और प्रायश्चित हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, तो हम दंड ना देके हम बल्कि अपने रिलेशन को कंटिन्यू रखें, हम जो है उसको चलने दें, अपने और कर्म ना बनाएं, अपने और हम उसके अंदर ना जाएं। तो ये बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत सुंदर विचार हैं। So best way to forgive is remain connected and continue. Do not get into other person's doings. Maybe the other person then realizes that what wrong he has done to anyone. So बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच लता जी। क्योंकि जब हम माफी देते हैं तो हम अपने लिए पीस ज्यादा लेते हैं, ना कि उसको माफ करने की सोच के रहते हैं। तो बहुत अच्छे मृदुलता जी, थैंक यू सो मच। जन्म जन्मांतर का भी सही है। जन्म जन्मांतर, इस जन्म में तो खुश रह लें, जन्म जन्मांतर में तो जो होगा वो हम देखेंगे। इस जन्म में खुश रहिए, पीस में रहिए। ये सबसे बहुत सुंदर मृदुलता जी, कहानी बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो वो कहते हैं ना, देयर इज नो लव विदाउट फॉरगिवनेस एंड देयर इज नो फॉरगिवनेस विदाउट लव। आपके मन में प्यार नहीं तो आप उस चीज को भूल के फॉरगिव नहीं कर सकते, और प्यार भरा जो दिल है उसमें कठोरता आ ही नहीं सकती। उसको हर चीज एक्सेप्टेबल होगी, तो माफ करने वाली सिचुएशन नहीं आती, और एक्सेप्टेबिलिटी आती है तो प्रभु का धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड आता है। ये बहुत सुंदर विचार। अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को बोलेंगे। मंदिलवार जी, आपके विचार आप जरूर रखें। मंदिलवार जी एक बहुत काम, हाँ जी, बहुत काम और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अब हम इनके विचार आगे सुनाएंगे। मैं बोलूं? जरूर बोलिए सर। हाँ। मैं केपी मंदिलवार, प्यार से यहाँ सभी भाई बहन हमें केपी जी कह के पुकारते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। खैर, अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर।
यह मेरी विदेश प्रवास की डायरी के कुछ पन्नों से सच में घटी घटना के आधार पर है। मैं पत्नी के देहांत के बाद टूट सा गया था। लगता था जिंदगी के सफर में आंधियों के झंझावात से टूट सा गया हूँ, जिसमें मैं अकेला रह गया हूँ। डिप्रेशन के चलते मैं अस्वस्थ हो चला था। मेरी अस्वस्थता को जानकर मेरा पुत्र अमेरिका से आया और अपने साथ यूएसए ले गया। वहाँ भी हमें मन नहीं लग रहा था। मैं बात बात पर गुस्सा होना, जवाब देना जैसे साधारण सी बात हो गई। इसी बीच रात में खबर आई, मेरा एक अभिन्न जो बेंगलोर में रहता था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, वो हार्ट ऑपरेशन के दरमियान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं रात भर रोता रहा और अंत में सो गया। और सवेरे जब उठा तो हमने देखा कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। स्नोफॉल हो रहा था। लेकिन उसी में मैं तैयार होकर छाता लेकर मैं बाहर निकल पड़ा। मुझे सबों ने मना भी किया, लेकिन मुझे क्या हुआ था, मैं किसी की बात में नहीं मानता था। मैं गुस्से में हमेशा रहता था। पता नहीं क्या हो गया था, किस बात का गुस्सा, किस बात को नहीं मानना। अंदर से मैं बहुत गुस्सा था और बात बात में बातचीत करना, बोलना, ये हमारी फितरत हो गई। छाता लेकर के मैं बाहर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि एक ट्रक खड़ा है और उसके ऊपर एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति खड़े होकर कुछ सामान उतारने में व्यस्त थे। जब मैं उसके समीप पहुंचा तो मैंने उन्हें विश किया, गुड मॉर्निंग सर। उसने कहा, यू सेड मी सर। आई सेड, व्हाई नॉट, यू आर सो सीनियर पर्सन, आई मस्ट रेस्पेक्ट यू। He said, but nobody respects me here, as you have said. I asked him, what are you doing in this snowfall? He reciprocated. He asked him again, who are you in your family? He said, he is alone. His 2 children and wife have left him alone in this small house and a truck. But he is quite happy, works with the truck of the livelihood. With the livelihood, cooks his food, and with drinks, he takes the drinks and go for sleep and feel quite happy. Then he asked me, but I see you are not happy in your life. I asked him, प्लीज म्यूट करें। please, अग्रवाल जी म्यूट। please शांत रहें. हाँ, अग्रवाल जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। Then he asked me, but I see you are not happy in your life. I asked, how do you know? He replied, I know everything about you. You are angry with anybody, everybody. You think others have not done justice to you. But child, forget everything and forgive them. And forgive them from core of your heart. Do not keep anything in your heart, and you will be happy. Nearby there was a lake and there were so many benches. He said, go and sit down for some time near the bench and think over it, and you will be happy. I asked him again, but tell me, how you know all about me? He just said,
I know everything about you, and said, you do what I have said. And he drove fast. मैं सोचता रह गया, कौन थे वे? मैं रोमांचित हो गया, लगा जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को संवाद दे दिया है। मैं थोड़ी देर बेंच पर बैठा रहा, मुझे अजब महसूस हो रहा था, मैं रोमांचित हो रहा था। अंदर से, बाहर तो गर्मी पड़ रही थी, बाहर में बर्फ पड़ रहा था, लेकिन अंदर से मुझे गर्मी लग रही थी। लग रहा था जैसे कुछ बाहर निकल रहा है, और मैं धीरे 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 चलता हुआ उस बर्फ स्नोफॉल में घर पहुंचा। मेरे मन में बड़ी शांति थी, मैं बहुत खुश था। मेरे बच्चे जब मुझको देखे तो बोले, पापा बहुत खुश नजर आ रहे हैं, इनमें बहुत चेंज आ गया है। मेरा मन एकदम शांत और प्रसन्न था। लगा जैसे हमारे जो बुरी आदतें थी वो सब चली गई। पहले मैं कितना बकबक किया करता था, बोलता रहता था, वो सब शांत हो गया। और वहीं पर मैंने इमोहा के विषय में सुना। जब मैं वापस आया तो इमोहा को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद हमें इतना चेंज हुआ जो कि हम हमेशा बात करते रहते थे, बोलते रहते थे, गुस्सा होते रहते थे, हमने सब कुछ क्षमा कर दिया और मन एकदम शांत होकर के। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ। मेरा रोम नहीं, मैं एकदम शांत हो गया हूँ। मैं शांत हो गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस मंगलवार देने वाले राइट फ्रॉम हिज हार्ट। हाँ, बहुत अच्छे केपी साहब, बहुत अच्छे। आपने तो बिल्कुल प्रैक्टिकल केस दिया, जहाँ हमें नजर आया जब हम क्षमा करते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, जिंदगी आसान कर लेते हैं और प्यार में रहते हैं और अपना भविष्य भी बदल लेते हैं, हमें जीना आ जाता है। तो बहुत सुंदर मंगलवार जी, आपकी एक्सपीरियंस सबके लिए बहुत यूजफुल, कि हमें अपने को शांत करना है, सबको प्यार करना है। वो तभी हो सकता है जब हम सबको क्षमा करें और अच्छे अंतर्मन की सच्ची पुकार, अंतर्मन की। हाँ, तो भगवान उस रूप में आए। उन्होंने कहा ना कि मुझे लगा अर्जुन को ज्ञान दिया कृष्ण ने उस रूप में आए और उनको ज्ञान दिया और उनको एक चेंज, वो सुनते ही एक चेंज आया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मंगलवार जी। तो अभी भी मैं एकदम रोमांचित, एकदम रोमांचित। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। बस प्यार में रहिए, प्यार करते रहिए, सब आपके हैं, सब आपके हैं, बस प्यार में रहिए। यहाँ तो इमोहा ने इतनी बड़ी फैमिली दी है। नमस्कार। अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से। वो कबीर का एक दोहा है, और रंगती नी चदरिया, यही चदरिया रंगी गई है, बिल्कुल जीनी चदरिया रंग गई उनकी। बहुत सुंदर। चलिए, नेक्स्ट स्पीकर इज एनलाइटेंड सोल, क्लियर विजन, बिलीवर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आर वेरी चार्मिंग देविका। You never know how strong. हाँ जी, मंगलवार जी, ऐसे you never know. पहले म्यूट करवा दीजिए सबको। एक मिनट। हाँ, ये कौन म्यूट करेंगे? बीच में अनम्यूट हो जाते हैं। ये अग्रवाल जी और जुनेजा जी नहीं है। अग्रवाल जी रिक्वेस्ट की म्यूट करिए। पीएन अग्रवाल का है, जुनेजा का है, ये दो नहीं है। प्लीज, हाँ अग्रवाल जी का हो गया, जुनेजा जी पवन यार प्लीज सब लोग म्यूट रखें बार-बार। हाँ, ये अभी अग्रवाल जी का है। अभी अग्रवाल जी प्लीज, हाँ हो गया। जुनेजा जी रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट करिए। सबका हो गया। आभा जी, एवरीबॉडी इज ऑन म्यूट नाउ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
Ritu, Can I begin? you will, I'll just say a word and you can begin. You will never know how strong your heart is until somebody hurts you. And if you cannot forgive, you do not expect others to forgive. So always forgive. Devika, please start. Sadat Pranam to everyone, and Pranam and a lot of gratitude to God and all my spiritual mentors who have made me capable of being able to share what I'm going to share today. Thank you, Abaji and Renuji, for giving me this opportunity to share with you my views on forgiveness. I really feel privileged to get this chance. Anger is presence of sin, and forgiveness is presence of God. That is why forgiveness is divine. Just a tiny hurting remark, which takes a fraction of a second, and the pain and the suffering lingers on for years and years and years. You may tell yourself mentally that you have forgiven, but deep down you know that you have not been able to forget. That is why you have not been able to forgive. And the inability to forgive is the cause of suffering and poison, toxicity within you. Kejriwal ji just now said that Draupadi was able to forgive. But to be able to reach that capacity of forgiving, just look at what she went through. After the Chir Haran, Krishna went to Draupadi and told her, forgive Duryodhana. Why did he say that? He said that because he knew that she is going to suffer a lot. However, she was not able to forgive. When Duryodhana fell, she said, Andhe ka beta andha. And her feelings of revenge and anger were the cause of the battle of Mahabharata. Now, why is it so difficult to forget something that happened years and years back? Because we are constantly feeding it. By constantly thinking about those moments, we are giving more and more power to it. वैसे ही जैसे गाय जुगाली करती हैं, हम भी वही करते हैं. हमारे में एबिलिटी ही नहीं है कि हम उस बात को भूल सकें. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें बचपन से ये नहीं सिखाया गया है कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, ऐसे थॉट पे रखना है जिसमें पीस हो, जॉय हो. हमारे को सिर्फ एस्केप सिखाया गया है. Escape in games, escape in TV, escape in socializing, because that requires a lot of effort. Training the mind requires a lot of effort. कबीर जी ने सच बोला है कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल. कोई भी अपने मन को स्वच्छ नहीं करता, क्लीन नहीं करता, साफ नहीं करता, इसलिए वो सफर करता है. Now I believe that asking for forgiveness is as important as forgiving someone. And to prove my point, let me narrate a very true story. I don't know if you have heard about Bada Mandir Guruji. When he was in his chola, when he was alive, he did lot of things for people, blessed lives, removed diseases, and he's still doing it because without his body, he is unlimited and infinite. So a lady used to visit him very regularly, and she was very, very rich. She used to come in big cars, Mercedes, BMW, etc. One day she came in a bus and an auto, and she sat before Guruji, and she howled and howled and howled and sobbed that she had nothing left. Guruji reminded her, please remember, a few days back, a beggar had come to you asking for food. You had abused him. That abuse has hurt his very being, and he had cursed you. And the curse was so potent that it brought down your downfall. And he told her, go and look for him. Ask for his forgiveness. She went searching for him. After a long time, she was able to locate him.
fell at his feet, brought him home, looked after him, and joined her hands and asked for forgiveness. Within no time, she was really well off again. So you can imagine, just one hurting remark can do what for you? So not only forgiving is important, but asking for forgiveness is also important. When things are wrong in our life, sickness, relationship problems, financial problems, we need to think, I have gone wrong somewhere. Ask forgiveness from those whom we have hurt. And it is a fact that as human, we always tend to shout at, hurt those who are weaker than us, maids, drivers, dhobis, security guards, or somebody who's not as well as we are. If they complain to God about us, we are in big trouble because He really listens to them immediately. We shouldn't let our ego come in the way of saying sorry and ask for forgiveness from them. If you don't remember whom you have hurt, then ask God for forgiveness. The one who has written your destiny based on your karmas has the power to erase the negative writings in your life. In fact, asking for forgiveness, shukrana, gratitude should be a part of your daily routine. And for a person who is very evolved, forgiveness is very, very easy. That is because his mind is free from the baggage of the past. His mind is ever fresh and ever new. He doesn't dwell in the past or the painful moments. He is the master of his mind. It is said that Prahalad was being taken to Sachkhand. He asked, where is my father? So he was told Hiranyakashyap has done so many sins that he is going to burn in hell. Prahlad said, I will not go without him. He refused to go to Sachkhand without his father. Such was his evolved soul. And we all have the potential to reach there. We should not just say that we are humans, we can't do it. Of course we can do it. We have spark of God. But we have to walk that path. We have to take out time to train ourselves. So, when a person becomes capable of loving every human being, he sees only God in every human being. There is nothing called forgiveness. It is not there in his mind that somebody has done anything wrong. Some people went to a Sikh guru, I can't remember the name, and complained about a person who was offering water to the enemy soldiers on the battlefield. The guru smiled and asked why he was doing so. Very innocently, he said that he saw only God in everyone. He couldn't see anything else. The most important aspect of forgiveness is dissolve the ego. Spiritual progress is all about dissolving the small I and replacing it with the big I, God. I would like to end with a couplet with Kabir. Jahan daya wahan dharm hai, jahan lobh wahan paap, jahan krodh wahan paap hai, jahan shama wahan aap. Thank you. So forgiveness is divine. Thank you so much. Wonderful, Devika. Thank you. Wonderful, Devika. Absolutely Very wonderful. nice. Very Very nice. nice, Devika. Wonderful. Very well said. Very nice. Yeah. Very बहुत nice. सुंदर, It's बहुत very सुंदर. nice. very well said. देविका जी बहुत अच्छा सुंदर लगा। बोला, बहुत वंडरफुल। देविका जी We बहुत have अच्छा, to. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. very clear and sound. Very nice. And we all have to agree that if we just keep clinging to our wounds and grudges and think negative about others, we cannot embrace the God's forgiveness also. Then we are not eligible for that. We have to have gratitude. We have to have His forgiveness to us. And then we realize that how we forgive. It is He who will forgive everything. तो हमें जो भगवान के गुण हैं
प्यार का, दया का, क्षमा का वो अपनाने होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी ईगो को खत्म करके। वेरी नाइस देविका, वेरी वेल सेड। वो आपके कबीर के बोलने से मुझे भी ध्यान आया कि ऐसी वाणी बोलिए अपना आप खोए, औरों को भी शीतल करे, खुद भी शीतल होए। तो आपकी वाणी, आपका ग्रेटिट्यूड, आपकी दया, क्षमा, ये सब भगवान के गुण जब आप देखते हैं तो आप आगे बढ़ पाते हैं और किसी के आगे देख सकते हैं। थैंक यू देविका, your thoughts were really, really good. Everyone has to realize God is that eye which we want to get into. Next is Neelu. Next speaker is Neelu, a courageous, mature, and knows ups and downs of life. So I will ask Neelu to share her experience. Weak people revenge, strong people forgive, and intelligent people ignore. So Neelu, all it is yours. Please say. नमस्कार सबको नमस्कार। मेरा नाम नीलू रत्नाकर है और आज का टॉपिक एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, फॉरगिवनेस इज डिवाइन। भगवान भी साथ हैं और हम भी साथ हैं। हमको क्षमा जो है ये कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है, पर हमको अपने लिए, अपनी खुशी के लिए क्षमा करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को छोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमको अपने लिए क्षमा करना चाहिए। सो आई स्टार्ट विद दिस, फॉरगिवनेस इज द फाउंडेशन ऑफ अ मीनिंगफुल, डीप एंड ट्रू रिलेशनशिप। इट इज अ ब्यूटिफुल रेमेडी which can heal a lot of wounds and give us peace. We have to develop deep understanding of ourselves and others. It is a 11-letter word that is forgiveness, but we can take it as 4-letter word that is love, जिसको हम प्यार कहते हैं। ये प्यार अपने लिए चाहिए, ये प्यार हमको दूसरों के लिए चाहिए। सबको प्यार करने की शक्ति होनी चाहिए। मैं एक गुरुजी मतलब है सरदार जी, वो हमको कहते थे कि पेड़ों से भी प्यार करो, फूलों से भी प्यार करो, क्योंकि उनमें जान है। अगर तुम उनसे बात करोगे तो तुमको उसका आंसर मिलेगा। तो हमको हर चीज़ में प्यार देखना चाहिए। हम कितनों को प्यार कर सकते हैं और कितनों को नफरत से देख सकते हैं, पर नहीं, हमको प्यार से ही देखना है। It is an expression of the highest love. So now the question arises that every human being makes mistakes in their life. Answer is yes. Now again we have to find that can we correct or erase those mistakes? To say sorry if we have hurt someone and letting it go, it does not mean that you are wrong, but we value the person and the relationship more than being right. हमेशा हम right होते हुए भी किसी को हमको माफ करना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमको आदमी बहुत अजीज होता है और हमारा एक रिलेशन होता है जो भगवान ने हमको जिन रिलेशन से बांधा होता है। Forget what happened in the past and start a new life is for us and for our own peace. हमको अपनी खुशी के लिए ही forget करना पड़ता है। To accept mistake and not to repeat is wisdom. Wise men accept mistakes, but fools commit blunders and never accept the mistakes and repeat the same mistakes very often. We can say this is their pattern. For our inner peace, we have to forgive and come out of the emotion of anger, depression, and sadness. Here, I want to give an example from my life. A man who was not related to me, nor I knew him very closely, but he took a chance to hurt me and my family. It is true that I faced that very boldly, but the scar was within me.
for a very, very long time. Now I asked myself that how long I can stay in that difficult situation. ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इसको कैसे डील करें, क्योंकि हमारे अंदर वो गुस्सा वो सब कुछ होता है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको रोज के चीज़ों के साथ भी रहना पड़ता है. बट मैं यहाँ कहूँगी कि मुझे भगवान जी ने बहुत ज़्यादा सहायता करी, एंड विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन and believe in God, I was able to overcome it. This made my life easy and happy. After that, I was very, very happy with myself, with my family, with my circumstances and everything. यहाँ ईगो का सवाल नहीं होता है, ईगो को हमको छोड़ना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, और हमको आगे बढ़ने के लिए उसको बहुत जरूरी है कि हम उसको छोड़ दें. My advice is forgive a person not because they asked for it, but for our own inner peace. It is a gift towards yourself, from yourself. You just have to search within it. It shows maturity on your part. Now to summarize, I want to say, भूल करना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है, पर उसे उसका सुधार लेना प्रगति है. सो वी हैव टू गो, मतलब हमको आगे बढ़ना चाहिए, पीछे देखना नहीं चाहिए. आगे बढ़ने से ही हमारी प्रगति होगी, अदरवाइज हम नहीं बढ़ सकते. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा नीलू जी, बहुत nicely said, बहुत अच्छे थे. This is your life experience. तीन बहुत अच्छे हैं. This is your life experience. हम कभी नहीं समझ सकते. You will never understand why someone has done something wrong to you. But yes, your forgiveness wants you to look at your anger, your pain, and let it go. Just remembering why he did so, you should not pain yourself more. गुस्सा तो आता है, पर क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, तो उसको जाने दीजिए. हाँ, जब गुस्सा आता है, आप अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं, अपने अंदर पेन और एंगर कर रहे होते हैं. तो बेस्ट इज टू लेट इट गो. हाँ, let it go. So thank you so much, Neelu. It was very, very nice. Our next speaker is Rajesh Bailji. He is a pleasant, calm, intense follower of yoga and self-development. योगा इनको बहुत प्रिय है और बहुत ही क्लासेस लेते हैं, तो इनका अपना बहुत ही अंदर समझते हैं. राजेश जी, यू कैन टेक ओवर. किसी के माफ़ी मांगने से साबित नहीं होता कि हम गलत हैं, वो ठीक, बल्कि ये साबित होता है कि आपने रिश्ते निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा है. सो इट इज़ वन टू फॉरगिव एंड इट मेक्स टू टू रीयूनाइट. सो ऑलवेज ट्राई एंड पुट काम टू योरसेल्फ. राजेश जी, इज राजेश वेल दे. सबको मेरी नमस्ते. बहुत अच्छा टॉपिक है ये. बुद्धा सेड फॉरगिव everyone, not for the reason that they deserve forgiveness, but because you deserve peacefulness. जो forgiveness है, it does miracles in life. किसी ने गलत किया, आपने उसको forgive कर दिया, चैप्टर क्लोज हो गया. उसके बाद में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. और अगर आप नॉन फॉरगिवनेस की तरफ जाते हैं हम लोग, तो हम बहुत सारी चीजें इनवाइट कर लेते हैं. एंगर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, नींद ना आना, अपने शरीर को परेशान करते हैं, अपने आप को तंग करते हैं. ड्यू टू someone else reason. You just forgive him or her and you close the chapter. This is, I believe in it. Or secondly, to err is human. Nobody is perfect in life. और लाइफ के अंदर सब रोजाना हम लोग गलतियां करते हैं, डेली करते हैं. जब हम ह्यूमन बीइंग हैं, यहाँ रहते हैं संसार में, तो हम गलतियां बहुत करते हैं. और वो इंसान को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, उसकी ग्रेटनेस मानता हूँ कि जो दूसरे को जो है फॉरगिवनेस, माफ़ी दे के और चैप्टर को क्लोज कर दे.
और उससे क्या होगा कि जिसको आप फॉरगिव करोगे उसके मन में भी आएगा कि मैंने गलती करी है, उसको भी रियलाइज होगा कि मैंने गलती करी है और मेरे को इतनी आसानी से फॉरगिवनेस मेरे को मिल गई है, तो उसमें भी चेंज आएगा बहुत ज़्यादा। और जो पावर ऑफ फॉरगिवनेस है, इट इज़ वो डिवाइन से जो है हम उसको कर रहे हैं कि फॉरगिवनेस इज कंपेरेबल टू द डिविनिटी ऑफ गॉड। अब जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड किसी, और उन्होंने तब भी लॉर्ड उन्होंने कहा, प्रे करी कि दीज पीपल दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको इन लोगों को पता नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ईश्वर उनको उन्होंने कहा कि इनको माफ कर देना। महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय नथुराम गॉडसे। उसने इतना बड़ा पाप किया, उसने उनको गोली मार दी, फिर भी उन्होंने ये कहा कि इसको कुछ मत कहना, नथुराम गॉडसे को नहीं कहना, कुछ भी इसको हार्म नहीं करना। जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं और तब जब हम लर्न कर लेते हैं किसी को फॉरगिव करने के लिए, तो जो हम संसार में देते हैं, अगर हम आज किसी को फॉरगिव करते हैं तो वो सब वापस आता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हमको भी माफ़ी मिलती है उसकी। जो हम देते हैं ना वही लौट के आता है हमारे पास। जो हम करेंगे, जो हमारे बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। वो ये अभी से नहीं, ये शुरू से ही ये जो है ऑब्जर्वेशन और ये सब छोटेपन से ही शुरू हो जाता है। और फॉरगिवनेस से किसी को फॉरगिव करना है नहीं इतना आसान, क्योंकि गुस्सा आ जाता है, रिटेलिएशन आ जाती है। पर इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत लर्निंग की जरूरत है कि जब मैं गलती कर सकता हूँ तो दूसरा भी कर सकता है। जब ये समझ में आने लग जाता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि अगर मैं गलती कर सकता हूँ, जब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को माफी मिले तो दूसरे को क्यों ना मिले। तो फॉरगिवनेस देके और उस चैप्टर को वहीं क्लोज कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। कि दूसरी तरह से कि अपने शारीरिक रूप से अपने आप को परेशान करें, मानसिक रूप से परेशान करें, और जब आप बीमार होंगे तो घर वाले भी दुखी होंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी इसमें से हम निकलेंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो हमारी तो उसमें जो स्ट्रेंथ जो पता लगती है, तब पता लगती है कि किसी ने गलती करी भी है और ऐसे आदमी को भी आप फॉरगिव करते हो कि जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ का तभी पता लगता है कि जो आदमी गलती करने के बावजूद भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और फिर आप उसको फॉरगिव करते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जैसे कई लोग ढीठ हो जाते हैं, वो कहते हैं उनको माफ़ीनामा तो मिल ही जाना है। उनको लगता है कि यार अभी तो हर्ट कर लो, अभी तो मजे ले लो, अभी तो इसी तरीके से इसको परेशान करो, पिन करो, क्योंकि ये तो हर बार, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो हर बार फॉरगिव कर ही देता है। तो उसमें जो है तो कई दफ़ा उनको सुधारने में इसमें यही है कि यू फॉरगिव, यू डू योर ड्यूटी। आप उसको फॉरगिव कर दो, उसको ब्लेस करो, वो जाने उसका काम जाने, आप अपने रास्ते पर चलो। और जो है और ये भी कहते हैं कि जो भगवान का काम है फॉरगिव करना या फॉरगिव ना करना, इंसान का काम नहीं है। और भगवान भी हम जैसे लोगों सब लोगों से ही करवाता है सब सारे काम। और जो भी चीज़ें हैं वो भगवान ही कराता है। तो मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि एकदम तुरंत फॉरगिवनेस कर देनी चाहिए और अपने रास्ते पर चलना चाहिए। ब्लेस देम, जो गलत करता है उसको ब्लेसिंग्स भी दो, और आप अपने पीस ऑफ माइंड को खराब नहीं करो, घर का माहौल खराब नहीं करो, इधर उधर किसी से बातचीत नहीं करो, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो और नेगेटिविटी आई है। डोंट इनवाइट नेगेटिविटी इनसाइड यू। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, माफी कर दो और उस चीज को भूल जाओ। आई बिलीव इन इट। और जो है और दिस इज द बेस्ट वे विच आई जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। I thank you everyone and I thank you Abhaji for giving me this opportunity.
to Thank speak. you so Thank much, you. Rajesh ji. You accepted it and you have said so मैं nicely. बोलूंगी एक बात, क्षमा Well वीर done. से भूषणम। क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण होता है। ये जैन धर्म में एक त्योहार मनाया जाता है क्षमाबनी। यहाँ पे जो जैन होंगे जानते होंगे क्षमाबनी पर्व। तो हाँ जी। उसमें एक साल में ये त्योहार आता है जिसमें सब आपस में मिलते हैं और जो गलतियां होती हैं गले मिलके सब माफी मांग लेते हैं और आपस में मतलब थोड़ा सा इसमें बहुत कम होता है, मतलब सिर्फ वो आपको ये क्या होता है, ये होता है ना, ये आपका नारियल खिलाते हैं बस, और कुछ नहीं खिलाते। तो बहुत अच्छा त्योहार, मैं शुरू से इसको मानती हूँ, हर साल मैं मतलब इसको मनाती हूँ, कार्ड भी छपते हैं, तो ये बहुत अच्छा त्योहार है। आपने बहुत अच्छा Thank you, बोला। Pawan. सिंपल मैं हर वर्ड साल इसको बहुत मनाती हूँ, हर अच्छा साल है। कार्ड छपते हैं जैन धर्म में। Thank you, Pawan ji. Thank you, Pawan ji. मिच्छामि दुःखम। हाँ जी, हाँ जी। सिंपल ये वर्ड म्यूट Permission. Permission. सब लोग म्यूट हो जाइए प्लीज। दुःखम के बहुत बाद ज्यादा मिच्छामि आवाज है। दुःखम। हाँ जी, हाँ जी। परमिशन बनाते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं। Abhaji, you'll have to unmute yourself. थैंक यू ऋतु। राजेश जी बहुत अच्छा कहा कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब गलती करते हैं, तो हमें माफ फॉरगिव करने के लिए आना चाहिए। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, हम अपनी गलती के लिए बनते हैं वकील, 10 दलील, और दूसरे की गलती के लिए जज कि ऐसा क्यों करा। तो वो नहीं, हम सबको माफ करें और अपने आप को भी माफ करें और ऐसे रहें। ये जो क्षमा पर्व है, इसके लिए आपने बहुत सही कहा कि हम सबसे क्षमा मांगते हैं और सबको एक बार ये करते हैं। बहुत बढ़िया राजेश जी। क्षमा मांगने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि वो जो दूसरा गलती करता है वो भी भगवान ही करा रहा है उससे, तो आपको क्षमा देने में आसानी रहेगी, क्षमा देने में आसानी रहती है फिर। लेकिन अब हम एक भजन करेंगे, ये शर्मिला जी भक्ति रस में जुड़े भजन का आप जरा मजा लीजिए। हमने बहुत सुंदर विचार सुने सबके। आज शर्मिला जी की प्रार्थना, और वो कहीं उनका भजन है कि हमसे भूल ना हो, हम भूल ना करें और परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे। शर्मिला। आप म्यूट पे हो शर्मिला जी, शर्मिला जी आप म्यूट पे हो। Sorry, I'll start again. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों की बाटे सभी को, बिन के जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा की जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना,
हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बेबसी है सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसा ये धरती थमी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना की ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आ आ आ, ब्यूटीफुल मीला जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल ठीक, बहुत बिल्कुल ठीक मीला जी, हमने कि बिल्कुल भूल जो है हमेशा ही फॉरगिवेबल होती है। मिस्टेक्स आर या हाँ, बिल्कुल सही, बहुत दिल से गाया, बहुत दिल से गाया है। स्कूल टाइम की सबसे अच्छी प्रेयर थी ये स्कूल टाइम। थैंक यू। बहुत अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसके साथ इसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन। बट क्षमा जो है वो प्रेम का अंतिम रूप, इसलिए हर किसी को क्षमा करें, हर बात के लिए क्षमा करें और हर सुबह नई जिंदगी की शुरुआत करें, किसी भी चीज में अटके नहीं। जब वो भूलनहार हमारी हर भूल को माफ करता है, हमें भी भूल को माफ कर देना चाहिए। इसके we are all in our mortal world and time is ticking away. Whatever you do, it takes away. You cannot hold the time. Whether you are happy, it takes away. You are unhappy, it takes away. You are sad, it takes away. You are happily dancing with joy, it takes away. What we need to understand is that we are mortal and time is ticking away. We need to do whatever matters most to us. Have inner peace, have your stable inside, and then the life is wonderful. Learn how to forgive, forget, and let go. हमने अपनी जिंदगी यूं आसान कर ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली. So now our last item is on meditation. Praveen ji will take us through it. Meditation. Yeah, meditation is by Praveen ji. Praveen ji is You are on mute, Abha ji. You are mute. Okay. ठीक है. Praveen ji, you can take us through meditation. We have. Thank you, Abha ji. जैसा कि सबने इतना कुछ फॉरगिवनेस के ऊपर बोल दिया है, वेरी वाइज अपनी सारी उन्होंने बातें बताई हैं, तो आज की हमारी मेडिटेशन भी जो मैं लीड कर रही हूँ वो मोर और लेस इज ऑन द फॉरगिवनेस इटसेल्फ. आई होप कि आपको अच्छा लगे, और अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं भी फॉरगिवनेस पहले ही मांग लेती हूँ आप लोगों से. तो नाउ we will start with our meditation. One. आवाज आ रही है ना? ठीक. हाँ जी, आ रही है. Now, today let's our meditation on forgiveness, and of course by experiencing our self-realization.
So I will request all of you to sit in a comfortable position and put your feet on the floor. Now everyone, please close your eyes and bring full attention to this moment, allowing your mind and body to be relaxed. Take 3 deep breaths, bringing your awareness with each breath as it comes in and goes out of your body. With each breath, allow your body to be free from all the tightness or the stiffness. If any stress, release it fully. Just calm yourself. Now bring your attention to your tailbone area, which is an infinite source of energy. This energy will be cleansing and recharging your energy with the deep sense of security, well-being, and will grant you the pure knowledge. Just concentrate there for a few seconds. Just lose yourself if you're feeling any stiffness or a stress at your stomach. Now bring your attention in and around your stomach. This is the area where we normally hold and store all the stress. Try to release it and let it go. Let loose it. Pray in your heart to the supreme power which is running the universe. Ask that power to enlighten you with your energy to see and feel your power within by granting me the pure knowledge and its existence. Untie all the stress in and around the stomach. Now feel the coolness
all over your stomach. Just enjoy the coolness. Slowly bring your attention on your heart. Let all the knots open up in your heart, which were closed for so many good or bad reasons and were all stored in it. While opening each knot, tell your heart to open up and release itself from all the hurt or bad memories stored in it. Whoever has hurt you, just say that I forgive them. Who have done wrong to me, and I also forgive myself for whatever wrong I have done to anyone. Just untie your knots. Ask the Supreme Power that to fill my heart with love, compassion for each and everyone in this world. God, please make me the source of love, compassion, and joy for everyone. Just open your heart. Now see that your heart is opening up and you are feeling very peaceful and light. Just fill your heart with all the love of the universe. Become an ocean of love and compassion, where there's no hurt, no bad feelings exists. Only love is flowing everywhere. With this joyous feeling, just bring attention to your forehead, eyes, and jaws. Allow all the muscles to relax. Notice if there is any tension around. Try to release the strain.
Now slowly bring your whole attention on the top of your skull. Feel what is happening in this area. You might be feeling a heart throb or a soft, cool or warm vibrations. Any sensation, or might not feel anything at all. That's no problem. Just concentrate there. Just enjoy it. You must be noticing the feeling of wellness all over the body, and that you are emitting cool or warm breeze which is coming out of your body. Enjoy this enlightened power in yourself. This is the common outcome of meditation. Slowly bring back your attention to the room. Wait for a few seconds. Slowly, slowly open your eyes. And see the blissful part of the meditation you just experienced. Now relax yourself and try to this meditation whenever it is possible to do so. Thank you. बहुत बढ़िया प्रवीण जी. Well done. Beautiful, very cool, and the music was very soft. And it is the first time I did meditation. Thank you very much. Thank you, Ji. Thank you so much, Praveen. Thank you, Praveen ji. We really felt very good doing it. Thank you, Praveen. प्रवीण बहुत जी अच्छा बहुत लगा अच्छा कराया, प्रवीण बहुत कूल कराया आपने. हाँ बहुत अच्छा अच्छा ये beautiful. जो Wonderful session. meditation है, this is actually जो हमारे अंदर शक्ति भगवान की है, ये cool vibrations है, which we normally are not, concentrating all the time. We are busy in doing mundane things. Yeah, it was wonderful, Praveen ji. Wonderful. I really believe that taking you inside, becoming calm, is one of the steps which you can achieve in forgiving by practicing meditation.
Until you are calm, you cannot do it. Yeah, you have to Very open right. up your heart. You have to open. Once If you you are open your open, heart, Thank you. yes, Thanks a it is, lot. it is very, very You true. have to become an ocean of love and You have compassion to. to everyone. So that practicing meditation believe. will really, I really believe it. Thank you so much. Very wonderful. Now session. everybody knows my reason of so bubbly. This is all my meditation. This is the flip side. Sorry, thank you so much. Thank you, Parveen. Thank you so thank much. you. Thank So you. nice of So you. this, आभा जी बहुत अच्छा with प्रोग्राम this- था आपका, बहुत अच्छा। और Yes, सारे सारे Yeah. हमारे नए फैमिली मेंबर्स को भी थैंक यू। Thank you, बहुत अच्छा। everyone. सबने बहुत अच्छा So किया। I will like to thank my team for this wonderful expressions and their sharing their experience and becoming part, creating a very interactive theme, which really involves all of us. My sincere thanks to Renu, who was my mentor, guide, This has and been the supported best me at trip every so- step. so far. So my done, team Renu, well done. with Renu is a wonderful team, which made this. Thank you, Renuji. Yeah, which made this program successful. I was just moderating. It was nothing much. Very And I will, Renuji, thank you for everything. and I would like to thank Imoha. Abhaji, but you are very cool as a moderator. Thank you so much. So I would like to thank Imoha and all the stalwarts, Ritu, Imoha, and all the stalwarts of this team who created this platform to share and paved a path for everyone to get connected and express their experience and views. Very nice platform for everyone to join. The new joinees have done this wonderfully, and they will see the family and get connected. I got connected to so many people because of this. So very nice, very nice. And I will thank Ritu for giving me this chance and encouraging me to do it. I wouldn't have done it otherwise. Thank you so much, Ritu. Thank you so much, Ritu. Abhaji. I need to thank you more than anything else. I can't. So our program is, everyone has done so beautifully, absolutely. And like I always say, firstly, I need to thank all of you, and for everyone who becomes a moderator. Abhaji was relatively very, very new when we just kind of dropped this bombshell on her, and she said, "Abhi nahi," but she got convinced. So thank you so much for doing that, Abhaji. Into your second meeting, practically, we dropped you. We asked you to do this, and. With all her reservations initially, she still agreed to do it. So thank you so much. And I think it was a beautiful, beautiful program. And, something all of us can really, really relate to. And ये सब हमारे साथ हर रोज होता है. छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती, हम किसी से गुस्सा होते हैं, and कहीं ना कहीं हमारी ईगोज आती हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, and we don't want to forgive people very easily. And जैसे किसी ने कहा था कि जब हम करें तो ठीक है, we have justification, but जब कोई और करे तो वो उसकी गलती है, and वो and it is very difficult. हम बिल्कुल दूसरे के लिए जज. So दूसरे के लिए judge, very true. So, and that is the reality of life. And I think if we can inculcate even a bit of forgiving easily, it will make a huge, huge difference in our lives. And thanks to all of you that we are also learning these things. We read it everywhere, we hear it, but when we hear it with experience and with what you all say, it really, really makes a difference to all of us here also. So I hope that we learn to forgive easily and without keeping it in our heart, and genuinely letting it go to make our life simpler and life more beautiful. And I would just like to thank each and every one of you. Isbat, Abhaji, I have to give you credit for this, and for all the other members who helped you to choose all the new people. कौन बोल रहे हैं? Praveen ji, can I request you to mute yourself? एक मिनट बोलना. हाँ जी. Praveen ji, हाँ जी. म्यूट करिए. कर दिया मैंने. भैया नहीं. प्रवीण जी. हाँ जी, सॉरी नहीं. Can I म्यूट एक तो भैया म्यूट बड़ी. प्रवीण जी. अब मैं कैसे करूं कुछ भी.
मैं म्यूट कर रही थी आपको, सॉरी ओके सॉरी, आपका हो गया। सो रितु जी आप जो ये टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ना, इतना लाइफ रिलेटेड होता है ना कि इसलिए ये बहुत ही अच्छा मैं इसका क्रेडिट ऑनेस्टली नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज एवरी मॉडरेटर इज फ्री टू चूज देयर ओन टॉपिक, एंड जो ये कम्युनिटीज में आपके पास प्रोग्राम आते हैं, it is all done by the elders. I just choose the moderator. Of course, sometimes we do have a discussion over it, a bit of it, but ultimately it is the elders together who think of a particular related topic and which they feel will be relevant to each and everyone. So the credit really goes to the moderator and the team. जब हम practice sessions करते हैं, that is the first time, like when you meet up, we decide on the program is decided by all of you, and then you all take it forward and conduct it the way you all want to do it. I really appreciate. Yes, so अगर topics आप लोगों को बहुत relevant लग रहे हैं, all the credit goes to all the moderators who've been doing it for the last 3 to 4 months, who really come up with something which हमने बहुत सीखा यहाँ। माफ करना रीतु को, हर टाइम हम लोग माफ करते रहते हैं, वो गाना नहीं गाती फिर भी हम माफ कर देते हैं। मैंने देखो उस दिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गाना गाया, जबकि आप सबको पता है मैं नहीं गाती हूँ। तो पर उसमें से काटा क्यों जब वो उसको बनाया गया? अपने आप का गाना नहीं है जो आ रहा है ना। उन्होंने कहा होगा इतना बेसुरा गा रही है, इसको हटाओ यहाँ से। हमारे को इतनी बुरी तरह दिखा दिया, पागल से लग रहा है हम लोग। आप लोग तो हमेशा इतना अच्छा करा था उस दिन आप लोगों ने। That was a wonderful. And coming back to today's program, so thank you to all the new members who have been a part of this and who have come forward to be a part of this spiritual community. And like I always say, जरूरी नहीं है कि आपने एक में पार्ट लिया तो दूसरे में नहीं ले सकते. Please do come forward and please volunteer. So big thank you to Girja ji, Mridulata ji who joined us, and Mr. KP. Finally, he's broken his silence and he's part of it. उनको मैं वैसे भी next time Bollywood का उन्हीं को देने वाली हूँ moderation. Devika ji, wonderful to hear you, and Neelu ji, Mr. Rajesh, and Sharmila ji and Praveen ji, of course. With the beautiful meditation, a different facet. And honestly, मुझे तो लगता है meditation में तो thank you. Love you. So thank you so much everyone. And Abha ji, now I will just request you, अगर आप किसी को nominate करना चाहती हैं for becoming the next moderator and handing the mantle to that person. So Ritu, Abha ji's moderation should teach a lesson to everybody. It's a big inspiration that she took over, and she managed to get all new people except Parveen ji. Everybody was new. Absolutely. I think Sharmila ji and Praveen ji को छोड़ के everyone here was new. Sharmila ji का भी last minute पे change हुआ. Sharmila ji was last minute. Yes, Mr. Parmar was doing it. Yes. Yeah. So, but Abha ji, really kudos to you for that. I think you've done something wonderful. हम हमेशा कहते रहते हैं, getting new members in, because like you said, this is the time to break. It's an ice breaking kind of a thing that आप suddenly सबको जानने लगते हैं, आप नए आते हैं, and because of this you meet new friends, meet new people, build relations, and that is what the whole platform is about. And of course, जैसे गीता जी ने कहा कि related topics which really hit a chord, and you all understand each other more than even anybody else. आप लोग सब same age में, same age group में, and all of you have gone through the experience of life. So every and it's a good bonding also. It's a very good bonding. Yeah, exactly. The relationship that you build. It's a good platform. Yeah, it's a good platform to get connected with you. So Abha ji, next moderator. गीता जी से पूछिए, she is liking. Geeta Panji, can I request you to be the moderator for the next spiritual club? When will it be? It will be next month, probably, since today is 31st. It will be by the end of the next month only. Any time after 25th. 25th. So आपको कुछ नहीं करना है. You will just have to have a practice session every week. You can just let me know the time and the day and the time, and we will send a message. Everybody will join in, and
you all can discuss what is the topic and what you want to do in the next club, and then practice for it, and then otherwise also just meet up. Ritu, don't give wrong information कि आपको कुछ नहीं करना. That's a very wrong thing. कुछ तो करना होता है. Yeah. थोड़ा करना होगा. But how to select participants and all this? जब आप practice session announce करेंगे, everybody who's interested does join it, and of course, if you feel during any of the meetings that yes, this person, is one person you would like to include in your show and all that, you can ring them up and tell them to be a part of it, and you can reach out to the other members. When do we have? What time? Where do we have practice sessions? ये आप मुझे बताएंगी, मतलब जैसे today is Wednesday. So whenever you want to have it, it means the time. Which time? It will be any time between 12 it could be 11 o'clock, 12 o'clock, or around 3:30. So that time choosing will again be your choice. And of course, it is better to keep it on a day when 12 o'clock there is no session, so that you get ample time. You get 1.5 hours or maybe 2 hours, whatever time you all take to discuss and decide. आभा के अनुभव से आप उससे थोड़ा गाइडेंस ले सकती हैं. And everyone is there to help out. जो लोग आते हैं, they all have been a part of it, and they all will be guiding you. Ultimate call will be yours only, but you will get people to help you. मतलब like everybody here is, and the topic आप सब decide करेंगे. सब means कौन? जो भी उस दिन प्रैक्टिस सेशन में आएगा, आप लोग सारे डिसाइड करेंगे. तो कह रही है ना, कुछ काम नहीं होता तो वो सब करना है तुमको, सब आप ही को करना है. Geeta ji, nothing to worry about. We all are there to support you. So I will nominate you as the moderator for the next spiritual session, and I will speak to you personally also and explain it to you, Aram se. And that will be nice. Yeah. Right. So ladies and gentlemen, for the next moderator we have Geeta ji, who's accepted very gracefully. Thank you so much, Geeta ji. गीता जी, चिंता मत करिए, आपको तो बहुत नॉलेज है, मुझे तो नॉलेज नहीं थी, तभी मैंने कंडक्ट कर दिया. So right, thank you so much everyone. किसको knowledge? Wonderful. आपको बोला? मेरे लिए? हाँ जी, बिल्कुल. नहीं, knowledge आप सबको है. So we will now end the show. It's already 7 o'clock. So thank you so much everyone for this wonderful show. And Abha ji, a big thank you to you once again. Thank you, Ritu, and thank you everyone. Team who really did a fantastic job and a beautiful topic that was very well taken up by every one of you. So now see you all tomorrow morning at 8 o'clock for a physiotherapy show, and then we have nothing. Then yes, nothing in the afternoon. So, but I was just thinking somebody had asked for a practice session, but abhi wo final nahi hua hai, so isliye I just left it at that. And then 5 o'clock, of course, you meet with the dietitian. So till then, keep forgiving, thank you, Ritu. Keep praying, and keep smiling always. Okay. Thank you. Okay. Bye everyone. Bye. Bye. Good night. Bye. Thank you, Ritu. Bye. Thank you, everyone.